शिक्षा के क्षेत्र में नए कीर्तिमान स्थापित करने और बच्चों को आधुनिक तकनीक से जोड़ने के लिए जहानाबाद का प्रतिष्ठित रेडियंट इंटरनेशनल स्कूल लगातार नए कदम उठा रहा है। इसी कड़ी में स्कूल परिसर में शिक्षकों के लिए एक विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस बार दिल्ली से आई प्रसिद्ध कोऑपरेटर ट्रेनर पूजा यादव ने स्कूल के सभी शिक्षक शिक्षिकाओं को अशोका एजुकेशनल ऐप एमबीडी ग्रुप एजुकेशनल प्राइवेट लिमिटेड के बारे में विस्तार से प्रशिक्षण दिया। इस दौरान शिक्षकों को सिखाया गया कि कैसे इस डिजिटल ऐप के माध्यम से बच्चों की पढ़ाई को और अधिक सरल, रोचक और प्रभावी बनाया जा सकता है। इस विशेष अवसर पर स्कूल प्रबंधन द्वारा ट्रेनर पूजा यादव का भव्य स्वागत और सम्मान भी किया गया। स्कूल की प्रिंसिपल श्वेता शर्मा ने ट्रेनर पूजा यादव को शॉल ओढ़ाकर सम्मानित किया। वहीं स्कूल के डायरेक्टर इंजीनियर प्रकाश कुमार रंजन ने उन्हें स्मृति चिन्ह भेंट कर उन्हें बहुमूल्य मार्गदर्शन के लिए आभार व्यक्त किया। इस खास मौके पर स्कूल के प्रिंसिपल श्वेता शर्मा ने अपनी विजन साझा करते हुए कहा कि रेडियंट इंटरनेशनल स्कूल शिक्षा के क्षेत्र में नित नए कीर्तिमान स्थापित करेगा। बच्चों को वैश्विक स्तर की शिक्षा और संसाधन उपलब्ध कराना ही स्कूल का मुख्य उद्देश्य है। वहीं स्कूल के डायरेक्टर इंजीनियर प्रकाश कुमार रंजन ने स्कूल के कार्य प्रणाली पर बात करते हुए बताया कि शिक्षकों की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए स्कूल प्रबंधन हमेशा प्रतिबद्ध रहता है। उन्होंने बताया कि इसी उद्देश्य से पिछले महीने भी केरल से विशेष ट्रेनर को आमंत्रित किया गया था, जिन्होंने शिक्षकों को आधुनिक शिक्षण पद्धतियों के बारे में प्रशिक्षित किया था। डायरेक्टर ने साफ किया कि समय समय पर ऐसे राष्ट्रीय स्तर के ट्रेनरों को बुलाकर शिक्षकों को प्रशिक्षित किया जाता रहेगा, ताकि जहानाबाद के बच्चों को सबसे सरल और सर्वश्रेष्ठ तरीके से शिक्षा मिल सके। डायरेक्टर ने साफ कहा कि समय समय पर ऐसे राष्ट्रीय स्तर के ट्रेनरों को बुलाकर शिक्षकों को प्रशिक्षित किया जाता रहेगा, ताकि जहानाबाद के बच्चों को सबसे सरल और सर्वश्रेष्ठ तरीके से शिक्षा मिल सके। जहानाबाद से अतुल जोशी की रिपोर्ट। Namaskar, my name is Shweta Sharma and I am principal at Radiant International School, Jahanabad. So you can see that I am sitting here and I am smiling and I am very enthusiastic. You know the reason why? The training workshop in my school. Every year the team of Ashoka, Emilia Rashmi come to Radiant International School and gives the best training. Resourceful training, you can say that. Now let's come to more main points why I think it is very important. The first thing why this training is very much important for my teachers is that those people who come from MBD or Rashmi are resourceful people. They are experienced. They have structured and designed the syllabus. So they know what is the updates into that. So those trainers who are expert trainers come here to teach my teachers how to manage stress management, ethics in learning, using audio, visual for today's era. Then how can you use all the digital contents for teaching. Ma'am also teaches how to integrate art into teaching. She also teach many teaching aids like using of paper, using of simple materials and making learning a good experience. It takes a lot of time to prepare the lesson, to make a good plan of the lesson, to get the flashcards in your basket, to get the all items in your basket and arrange everything in advance to teach a child. My teachers are perfectionists. They are very good. They learn every time. They try to integrate, they try to imbibe new skill every day. But still, when somebody who is resourceful from Delhi, who has, given the experience of 12 to 13 years in MBD Alashmi and in Ashoka Group, and they have been into meetings, how to teach, what changes to make, what new lessons to be added. So many things they know, I think. So when they come with a smiling face, they teach my teachers for the entire year. This in Radiant happens 4 to 5 times actually. Now, after Ashoka, the team of Rachna Sagar will also come and they will give the training of how to improve teaching methodology and improve teaching aids in 1 to 5 classes. So they will talk about maths, use of models, use of activities and use of small labs in the classroom. So I think the teaching in 2021 is not traditional no more it's traditional. It's advanced. It requires techniques, it requires lesson planning, it requires effort, it requires 100% dedication. It requires teachers
who are ready to teach, not for money, not for survival, but for making good karmas and building the career of my children. So coming to school, students are just 3 years old. So those will grow up with my teachers. I believe my teachers and all those who I am associated with. Thank you so much for today. Thank you. नमस्कार, मेरा नाम पूजा यादव है और मैं दिल्ली से आई हूँ। आई एम फ्रॉम एमबीडी अशोका। सो यहाँ पे पहली चीज़ तो मैं बहुत खुश हूँ कि यहाँ पे मुझे आने का सौभाग्य मिला और यहाँ पे हमारी जो बुक्स हैं वो लोग ये यूज़ कर रहे हैं। बुक्स के साथ साथ हम ऐप और वेब भी टीचर्स को प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि आपको पता ही है कि आज की जो टीचिंग है यहाँ पे डिजिटल टूल का कितना इस्तेमाल होता है और टीचर्स को अब सिर्फ पढ़ाई के साथ साथ ओवरऑल डेवलपमेंट पे भी ध्यान देना है। तो कैसे हमारा करिकुलम उन सारी चीज़ों को ध्यान में रख के डिज़ाइन किया गया है। वेब और ऐप जो टीचर्स यूज़ करेंगे उसको कैसे इस्तेमाल करेंगे, क्या क्या फ़ीचर्स हैं, हमारे बच्चों के लिए कितना इम्पॉर्टेंट है, हमारे टीचर्स के लिए कितना इम्पॉर्टेंट है। जो टीचर्स पे एक वर्कलोड आ जाता है उसको कैसे कम हो सकता है थ्रू द टूल विच वी आर गिविंग टू देम, उसके बारे में एक डिस्कशन है यहाँ पे। प्लस उन क्या क्या चीज़ें हैं जो उन्हें अब ध्यान में रखनी है वाइल दे आर टीचिंग, बिकॉज द जनरेशन इज़ चेंज। आजकल के जो बच्चे हैं उनका सोचने समझने का तरीका अलग है। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट नाउ डेज़ कि टीचर्स को भी टाइम टू टाइम हम उस चीज़ को लेके अपडेट करते रहें। तो आज की जो ये ट्रेनिंग है ये इसी चीज़ पे है और ये सेम जो करिकुलम है एक मेट्रो सिटी में भी जो बच्चा है वो वही फॉलो करता है। सारी सुविधाएं हम उनको वहाँ पे जो देते हैं, हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारा जो यहाँ का बच्चा है उसको भी हम वही सारी सुविधाएं दे पाएँ। मोर देन एक्चुअली आई गेस मोर देन 200 schools I have visited and pan India and out of India also we go and train, but I only visited in pan India like Kashmir to Kerala. I've been there and it's my great experience, and in Bihar this is my very first time and I'm very happy. Engineer Prakash Kumar Ranjan, Director of the Radiant International School. Today we will organize educational training, teachers training each and every year. सर एक्चुअली में क्या है कि 21 सेंचुरी में जो बच्चे पढ़ते हैं स्कूल में, उनके लिए सर खास करके टीचर्स को ट्रेंड करना बहुत ज़रूरी है। 21 सेंचुरी के अकॉर्डिंग जो डिजिटल तरीके से अपडेटेड टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम लोग अपने बच्चे को आगे एजुकेशन दे बच्चों को, इसके लिए हम लोग हर साल ट्रेनिंग करवाते हैं। टीचर लोग को हम लोग हर साल तक ट्रेनिंग करवाते हैं। जैसे पिछले साल भी हमने करवाया था, केरला से ट्रेनर मंगवाते हैं। आज इस बार दिल्ली से हमने ट्रेनर मंगवाया है। सोका एमबीडी लक्ष्मी रूप एजुकेशनल जो कंपनी है उसके थ्रू हम लोग टाई अप करते हैं और ट्रेनिंग करवाते हैं हर साल बच्चों को। उससे क्या फायदा? उससे सर बेनिफिट क्या है कि 21 सेंचुरी के अकॉर्डिंग जो डिजिटल तरीके से जो आजकल पढ़ाई चलती है, आर्ट एजुकेशन की बात करें हम या एआई एजुकेशन जो अब आज चल रहा है, उसके माध्यम से जो पढ़ाई होती है बच्चे से, उसके अकॉर्डिंग हम लोग सब चलते हैं 21 सेंचुरी के अकॉर्डिंग। अब पुराने ज़माने की सर पढ़ाई और आज की पढ़ाई में बहुत काफ़ी अंतर आ गया और हम लोग इस चीज़ को देखते हुए टीचर्स को सबसे पहले ट्रेन करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर टीचर्स ही ट्रेन नहीं रहेंगे तो बच्चों को फिर गाइडलाइन कैसे कर पाएंगे सही तरीके से। और इसके अनुसार टीचर्स को हम लोग ट्रेनिंग देने के बाद उनको गाइडलाइन करते हैं कि बच्चों को कैसे खेल खेल में पढ़ा दिया जाए ताकि बच्चों को एक प्रेशर महसूस ना हो। विदाउट प्रेशर बच्चे आएँ हंसते खेलते हुए और बच्चे पढ़ के हमारे यहाँ से जाएँ और उनको ये कभी नहीं महसूस हो कि स्कूल की तरफ से कोई प्रेशर है बच्चे को पढ़ने में या कुछ इस तरह का। क्योंकि आजकल की स्थिति, आजकल का जो एरा है सर, उसी अकॉर्डिंग सर हम लोग हर साल टीचर्स को ट्रेनिंग देते हैं और हर साल हम लोग प्रयास करते हैं कि टीचर्स हमारे कुछ अलग करें, नया करें हर सेशन में। एजुकेशन के क्षेत्र में क्या कुछ करना चाहते हैं? हम सर एजुकेशन के क्षेत्र में क्या चाहते हैं कि बच्चे को सबसे पहले तो एथिक्स, बच्चे हमारे संस्कार के साथ पढ़ें आजकल की स्थिति में, और उसके साथ कहीं से भी कोई हमारा बच्चा जो स्कूल से पढ़ के निकले वो कभी भी किसी भी फील्ड में हमारा पीछे बच्चा ना हो, चाहे टेक्नोलॉजी के मामले में हो, एआई के मामले में हो या डिजिटल कंटेंट, ये सारी चीज़ें उनको प्रॉपर तरीके से मिले। ताकि उसके लिए सर क्या है टीचर्स ट्रेनिंग, हमारे टीचर्स लायक होने चाहिए, इसीलिए हम लोग सर हर साल टीचर्स को ट्रेनिंग दिलवाते हैं बाहर से ट्रेनर बुलवा के। तो इस साल भी हम लोग ऑर्गेनाइज किए हैं, दिल्ली से हमारे ट्रेनर आए हुए हैं एमबीडी लक्ष्मी ग्रुप के, जो इन साल भी हमारे ट्रेनिंग टीचर्स को ट्रेन कर रहे हैं। जी, हमारे यहाँ सर जो भी हमारा जो रिक्रूटिंग प्रोसेस है टीचर्स के लिए, वो हमारे यहाँ एक गाइडलाइन है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग रिक्रूट करते हैं। जैसे विदाउट ट्रेन टीचर हम लोग
नहीं एक्सेप्ट करते हैं अपने स्कूल में। बीएड क्वालिफाइड हो, एमएड हो या डीएलएड हो, ये सारी टीचर्स और उसके बाद एनटीटी ट्रेन टीचर्स भी हम लोग रखते हैं। और उसके अलावा हम लोग ट्रेनिंग दिलवाते हैं टीचर्स को, ताकि हमारे बच्चे की प्रोडक्टिविटी जो है, जो आउटपुट है, वो मैक्सिमम से मैक्सिमम मिल पाए टीचर्स के द्वारा। जहानाबाद में कई स्कूल हैं, निजी स्कूल, ऐसे में अपने आप को कहाँ देखते हैं और क्या कुछ करना चाहते हैं, बेहतर अपने आप को कैसे मानते हैं? हम लोग सर जहानाबाद में खास करके जहानाबाद में तो बहुत सारे स्कूल्स हैं, लेकिन आज भी हम समझते हैं कि एक बेहतर एजुकेशन देने के लिए 21 सेंचुरी के अकॉर्डिंग जो बच्चे का डिजिटल कंटेंट हो या इस तरह की जो चीज़ें देने के लिए एक अच्छे टीचर्स की आवश्यकता है, जो हमें काफ़ी यहाँ पर रिक्रूटिंग के समय परेशानी होती है, बट हम लोग उसमें से बेस्ट क्वालिफाइड करके उसको निकालते हैं, रिक्रूट करते हैं और उसके बाद हम लोग ट्रेंड करते हैं टीचर्स को अपने अनुसार, ताकि हमारे बच्चे को आने वाले दिनों में